our Honorable Chief Guest, Dr. Kiran Bedi Madam, esteemed members of the management, distinguished academic leaders, principals, coordinators, and the dedicated educators of Fravashi Academy, Fravashi International Academy, and Fravashi Town Academy, a very warm welcome to each one of you. It is both an honor and a privilege to welcome a leader whose life has been a remarkable testament to courage, discipline, integrity, and selfless service. On behalf of the entire Fravashi family, Dr. Kiran Bedi Madam, we extend our heartfelt gratitude for being with us today and for taking the time to engage with our educators. Behind every confident learner stands a tutor who believed, guided, and inspired. Today, we are proud to have with us the dedicated teaching fraternity of the Fravashi Group of Schools. Our team reflects a rich blend of experience and fresh perspectives. Amongst us are tutors who have been an integral part of the Fravashi Group of Schools for over 5 decades, alongside educators who have joined the Fravashi family just a month or 2 ago. Together, they represent the decades of experience, innovation, commitment, and an unwavering passion for education. This gathering is a wonderful opportunity for them to interact with an inspiring leader, reflect on the evolving role of education, and reaffirm the shared responsibility of building a stronger, more ethical society through the power of teaching. Behind every inspiring leader lies a remarkable journey, one that deserves to be introduced with honor and admiration. To introduce our distinguished chief guest, may I now invite the soul of our Fravashi family, our Managing Trustee Meghna Ma'am, to the podium. Thank you, Dilnawaz. Very good evening to one and all. Honorable Dr. Kiran Bedi Ma'am, Monica ji, Ajay ji, our Chairman Ratan sir, who's just gone out for a bit, and our academic and administrative directors, and my wonderful team members, my Fravashi family. I am repeating this introduction which I just gave in the morning for the students, but I have to reiterate the wonderful achievements of one of the most inspirational personalities of our country. So here it goes. Dear teachers, we are extremely honored, proud, and privileged to welcome amongst us our esteemed guest, Honorable Dr. Kiran Bedi Ma'am, a leader who has redefined how we spell success, not as position, privilege, or applause, but as courage, integrity, resilience, reform, and service to the nation. Dr. Kiran Madam graces us today as a pioneering leader, as a social reformer, an author, and India's first woman to join the Indian Police Service. Her trailblazing career has spanned policing, governance, social development, international diplomacy, sports, and public leadership. Dr. Bedi Madam has served as the 24th Lieutenant Governor of Puducherry, where she championed transparent, accountable, and citizen-centric governance. She has also represented India as the Civilian Police Advisor to the United Nations Department of Peacekeeping Operations. Dr. Bedi Madam holds a PhD from Indian Institute of Technology, Delhi, and was awarded the prestigious Nehru Fellowship for her postdoctoral research. Dr. Bedi Ma'am has authored several influential books, the latest one being Fearless Governance, which draws upon her experiences in public administration and governance as the Lieutenant Governor of Puducherry. Before her distinguished public service career, Dr. Bedi Madam has earned recognition as an Asian tennis champion. She has also received numerous national and international honors,
including the President's Police Medal for Gallantry and the Raman Magsaysay Award, often regarded as Asia's equivalent to the Nobel Prize. Driven by a commitment to social transformation, Dr. Bedi Madam founded two pioneering non-profit organizations, the Navjyoti India Foundation and the India Vision Foundation, which have been extensively working since last 3 decades in the fields of education, vocational training, women empowerment, prison reforms, drug prevention, rural development, and the rehabilitation of marginalized communities in India. Her reformist vision at the Tihar jail remains one of the most powerful examples of public service in modern India. She looked at a prison not merely as a place of punishment, but as a place where dignity, education, discipline, rehabilitation, and human possibility could be restored. That vision changed not only an institution, but also the way society speaks about correction, justice, and second chances. Recognizing her integrity and public service, national surveys conducted by the Reader's Digest and The Week magazine have consistently ranked Dr. Bedi Madam among India's most trusted and admired public figures. Through her digital learning initiative, Demonstrative Learning, she continues to engage with youth and citizens through learning conversations and public leadership programs. On her 77th birthday, 9th June this year, Dr. Bedi Madam, along with her co-founders, launched the Bharat Skills Program, the BSc, a technology-powered social enterprise dedicated to bridging the gap between skills, opportunities, and employment. Built on the pillars of the 3 T's, trust, transparency, and technology, BSc connects learners, training institutions, employers, mentors, and supporters to create pathways for meaningful livelihoods and nation building. To welcome Dr. Bedi Madam is to welcome a life that has constantly challenged limits. She has worked within systems that were demanding, complex, and often resistant to change. Yet, she did not merely occupy positions, she transformed them. Her journey reminds us that integrity is not an abstract value, it is a daily practice. It is visible in the decisions one takes when no one is applauding, in the courage to stand by what is right, in the ability to remain steady under pressure, and in the refusal to allow difficulty to become defeat. Dear Fravashi family, for each one of us who's present in this hall today, this is much more than an event. This is a masterclass in motivation, resilience, and success in the face of adversity. It is an opportunity to learn from a leader who has lived the meaning of discipline, dignity, public responsibility, and reform. Dear Madam, as mentioned in the morning, happy to let you know that we do follow your beliefs. To lead is to serve, not to rule, and leadership is about action and not position. Dear Madam, we welcome you with deep respect, admiration, and gratitude. We, the Fravashi family, are honored to get the opportunity to learn from your life, your work, your courage, and your continuing commitment to building a more responsible, ethical, and self-reliant India. Ma'am, our strong team, as Dilnawaz has mentioned, consists of a 50-year-old lady with the institution who has an association of 50 years with the same institution, with our institution. From there till a month or 2 old young teachers as well. And yes, ma'am, that's Mrs. Wagle, and she has also been Daddy's, that is our Chairman Ratan sir's teacher as well while he was in school. So, and lastly, dear ma'am, all our teachers love teaching, and that's how they teach all our students to love learning. ये हैं तो हम हैं, ये हैं तो हमारे बच्चे हैं. Thank you. Thank you, ma'am, for that graceful introduction. To celebrate the remarkable journey and enduring legacy of our esteemed guest, we now invite you to direct your attention to the screen for a special video presentation
on the life and accomplishments of Dr. Kiran Bedi Madam. They haven't seen. This is the story of reform. This is the story of courage. This is the incredible story of Kiran Bedi. Born on June 9th, 1949 in Amritsar, Kiran Bedi rose from humble beginnings to become a symbol of fearless public service. Her parents' quiet sacrifices shaped her resolve, carrying her to her first great triumph, Asian tennis champion. In 1972, she broke barriers by becoming the first woman ever to join the Indian Police Services, stepping boldly into a world dominated by men. As an officer in Delhi, she pioneered a humane yet fearless style of policing, confronting crime while healing its causes of drug abuse, illiteracy, and vulnerability. She earned the affectionate moniker Crane Bedi after finding the car of PM Mrs. Indira Gandhi's office, an act that made headlines for its fairness and her belief that no one is above the law. At Tihar Jail, her vision as IGP transformed one of India's toughest prisons into a center of reform. Education, meditation, and rehabilitation transformed a jail into an ashram, earning her the prestigious Ramon Magsaysay Award. Beyond the uniform, her mission continued. Through the Navjyoti India Foundation and India Vision Foundation, she worked to uplift communities, empower women, and educate children. As Puducherry's Lieutenant Governor, she made governance personal, cycling through neighborhoods, connecting with citizens, and championing transparency. An officer, a reformer, a guardian, a trailblazer. Across every chapter, she carried one truth with her: that leadership is not a position, it is a practice. Kiran Bedi's life story is a legacy that continues to rise, lighting the way for those who dare to lead. As a humble expression of our appreciation for your inspiring presence and your invaluable contribution to education and society, we would like to present a token of our gratitude. May I respectfully invite Dr. Kiran Bedi Madam to kindly grace the stage. May I request Dr. Manju Ma'am, Director Academics, Fravashi International Academy, Ms. Shalini Kadve Ma'am, Director Education and Human Resources, Fravashi Group of Schools, Mrs. Aarti Sharma Ma'am, Principal, Fravashi Academy, and Dr. Manisha Pawar Ma'am, Academic Director, Secondary Section and Principal, Junior College, Fravashi Town Academy, to kindly present a token of appreciation to our esteemed chief guest. Thank you, ma'ams. It is now our distinct privilege to invite our esteemed chief guest, Dr. Kiran Bedi ma'am, to address the dedicated faculty of the Fravashi Group of Schools. आप में से सुबह कितने थे? सुबह में कितने थे? तो जो इधर थे वो जाओ। मैं आपके लिए दोबारा क्यों बताऊं? हाँ, अच्छा, वो रिवीजन मांगते हैं। हाँ, इसका मतलब मैंने पढ़ा ठीक नहीं था, इसलिए उनको रिवीजन चाहिए। हाँ,
दैट्स अ गुड वन. नहीं नहीं, मैंने पढ़ाने में कमी कर दी, इसलिए मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ेगा उन लोगों को कि जो सुबह देख चुके हैं. अच्छा, मेरे दिमाग में ये था कि आप सुबह देख चुके हो और अब ऐसे ही बात करने आ रहे हो. तो ऐसा नहीं है, ये तो शुरू से ABC से है. और इतने सुंदर फेसेस लग रहे हैं. ऊपर से फोटो लो इनकी. लुक एट द फेसेस, लुक एट द फेसेस, सच लवली फेसेस. इधर से लो ना, और मेरा फोन भी मुझे लेने दो. लवली, जस्ट ब्यूटिफुल टीचर्स फेसेस. इतने सुंदर फेसेस, सिर्फ फेसेस मैंने कभी नहीं देखे टीचर्स के ही. आप ताली बजाते जो मैंने. मेरी बैटरी भी चार्ज हो गई. हाँ, ऐसे करेंगे फिर. देखो, जो मैंने सुबह बच्चों को दिखाया, मैं सोच रही थी कि आप देख चुके हो तो इसलिए आपसे बात कुछ हो, लेकिन जो मैंने बच्चों को दिखाया एक्चुअली इम्प्लीमेंटर्स आप हो, इसलिए आपके लिए 100% रेलिवेंट है. और अगर पेरेंट्स बैठे होते यहाँ, उनको भी मैं बोलती कि जो मैंने आज सुबह बच्चों को दिखाया, वो टेस्ट बच्चे तो फेल कर गए. बच्चों को मैंने क्विज दिया था एंड दे डिडंट पास. और वो जो पास नहीं हुए, कसूर किसका? दो जनों का, आपका और आपके पेरेंट्स का, उनका नहीं. अब मैंने उनको थोड़ी बोलने कि तुम्हारा कसूर है. और थैंक गॉड आप नहीं थे, नहीं तो वो कह देते कि हमको पढ़ाया नहीं तो हमको कैसे बताया मैम. और अगर पेरेंट्स भी होते तो वो भी कह देते कि हमारा क्या कसूर, हमारे मम्मी डैडी को पूछो क्यों नहीं हमको ये करा दिखाया सिखाया. सो आई एम सो ग्लैड कि आप नहीं थे. तो बच्चे को महसूस हो गया, जो मैं आपको बताऊंगी क्या हुआ. सो इट्स वेरी गुड दैट यू आर हियर. दैट प्रेजेंटेशन इज मोर रेलेवेंट फॉर यू and equally relevant for the parents. So let me begin. We will not lose time. Okay? Let me go. Where's the slideshow? Can I have a little table on the table here? Small table. I can put this here. Small table. Any chair. I won't leave it here. Oh, good. Thank you. Where's the slider? Yeah. Go ahead. Okay, good. मैंने जो बच्चों को दिखाया वही दिखाने वाली हूँ. ये है बच्चों के लिए हैबिट्स, सेल्फ डिसिप्लिन एंड लाइफ सेशन फॉर यू टू टीच योर स्टूडेंट्स. दिस इज फॉर यू. For what? For you, of course, but it actually you are means your children. So let's look at quickly these. And I gave them a quiz. And you will also not pass the quiz. So are you ready? Ready? Ready to take the test? So are you ready? Yes. Who's this? Pass. So these are the life lessons which I gave. I'm going to leave the presentation with you. She will be circulating it. You can repeat it. So we know the life lessons, but as teachers, you need to know. Supposing you talk about him to the children, what are the life lessons you will give? So these are the life lessons we have. Take them along, study it, but I'm going to move the presentation fast. Who's he?
Huh? How many know? How many know? See, they're very few. Very few. पर तो आप तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हो. तो अगर आप में से सिर्फ 10 लोग पास करेंगे तो only 10 are passing, only as you say. Now let's see who is it. This is Khudiram Bose. For what are we remembering him? He became the youngest martyr of India's freedom struggle. He was only 18 when he gave his life. And you're training, you're making, these are your students. This age group is your student. Are we putting in those sanskar of Khudiram Bose? Are we? Are we putting this Khudiram? Are we sharing what Khudiram Bose is to the children? You can say, ma'am, NCERT book में है शायद. अगर है तो समझाया, सिखाया, इंस्पायर करा, और भी उसके बारे पढ़ा, और उनकी लाइफ को बोलो जिया या एक्ट कराया ताकि वो एब्जॉर्ब कर ले. वो सिर्फ 18-year-old. तो एज इज नो बैरियर. ये पढ़ लेना. फिर ये कौन है? कौन? ये लड़कियों की बात. तो इसमें मैं लड़के और लड़कियों को मिक्स किया है ताकि ये नहीं लड़कियां समझे ये लड़कों का है सबको. सी, इट्स अ मिक्सचर. एज इज नो बार. शी इज रानी लक्ष्मीबाई. And that is where you can say girls can lead. Girls can lead with courage. See, so she had that courage from the childhood. लेकिन उसको सिखाया किसने? फॉर्मल स्कूल था कि नहीं? पेरेंट्स ही थे. तो दैट मीन्स ऐसा स्कूल ना भी हो तो भी बच्चा लायक बन सकता है. डिपेंड करता है उसके पेरेंट्स पर या उसके टीचर्स पर. इसके पास तो पेरेंट्स का था, माहौल था, माहौल था. ये कौन है? ये कौन? कौन? कोई नहीं जानता. आओ देखें. कनकलता बरुआ. Only 17 when she led a procession carving the. Only 17. हम सोचते हो 17, तू तो अभी बड़ी छोटी है, चुप रह. अगर प्रॉब्लम कोई देख रही है तो चुप रह, तेरी उम्र नहीं है ये. उसको हम बोलने नहीं देते, लिखने नहीं देते, बताने नहीं देते. मैं ये नहीं कह रही कि ये कॉकरोच पॉली पार्टी में जुड़ जाए. मैंने ये नहीं बोला कॉकरोच में जाए, लेकिन ये बड़ा कुछ कर सकते. इनको सुनो तो सही, उनकी बात सुनो तो सही, फिर उनको गाइड करो कि कैसे आप अपनी बात. और आपके पास तो PIL का सिस्टम यहां पर है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का. इवन द चाइल्ड, द गर्ल कैन फाइल अ PIL if she has the courage. मतलब ये हिम्मत कौन देगा उनको? अंदरूनी जागरूकता कौन देगा? So here is Kanaklata Barua. She led a procession carrying the Indian flag. ये कौन है? किसकी शक्ल है? बड़े होके जो दिखाऊंगी शक्ल तो जान जाओगे. लेकिन ऐसे बच्चों की शक्लें क्या टीचर्स को दिखानी नहीं चाहिए? स्टूडेंट्स को दिखानी नहीं चाहिए? ये देखो, तुमसे भी छोटी उम्र के ये बच्चे थे और वो क्या करते थे. ये देखो, he sold newspapers as a boy. पॉकेट मनी अर्न करने के लिए जाओ बच्चों, जाओ ये करो. So why don't we train people? जब तुमने पॉकेट मनी कमानी है, do something over the weekend and be an entrepreneur. आप कहते करोड़ों का स्टार्टअप बाद में बनाए. स्टार्टअप तो छोटी उम्र से होना है. तुमको जो उसकी बच्चे की हॉबी है पूछो, उसकी हॉबी क्या है, क्रिएट कर. और पापा से 5-10 हजार रुपया लोन ले ले, लोन लेके कमा, पॉकेट मनी कमा, कार्य कर. मान लीजिए उसको बोला जाए पॉकेट मनी कमानी है, तूने क्या करना है, कैसे करेगा तू? यू कैन मेक देम बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स. वही थोड़ी न्यूज़पेपर ही थोड़ी बेचते रहेंगे. यू आर ट्रेनिंग देम टू बिकम एंटरप्रेन्योर, क्रिएटिव, इनोवेटिव. तो कैसे होगा? ये इन्होंने किया. एंड ड्रीमिंग बिग करो, ये शुरू करो. ये तुम्हें बैंक अकाउंट खोलो, सेविंग करो, दोस्तों के साथ मिलके करो. यू आर टीचिंग देम पार्टनरशिप नाउ, बिकमिंग अ कंपनी नाउ. छोटी उम्र में कर सकते हैं. ये दोस्ती इसलिए थोड़ी है, दोस्ती तो बाद में कंपनीज बना, बिजनेस के लिए भी है, काम मिलके करने के लिए भी है. लेकिन हम सोचते हैं ये दोस्ती तो यही है, बाद में क्यों? असली दोस्ती यहां बनाओ और बिजनेस इकट्ठे करो.
क्यों नहीं? हम नहीं सिखाते, कोलैबोरेशन नहीं सिखाते, हम कंपटीशन सिखाते हैं। आप सिर्फ compete करा रहे हो एक दूसरे से, कोलैबोरेशन नहीं सिखा रहे कि अभी बनाओ अपनी टीम वर्क, कंपनी बनाओ, हम ये बनाएंगे, सोल्यूशन ढूंढेंगे। और हम लोग सीड मनी भी खुद बनाएंगे, पॉकेट मनी से बचा के। वी विल स्टार्ट ई कॉमर्स। कई बच्चे आज ई कॉमर्स कर रहे हैं, मिलके ई कॉमर्स भी कर सकते हैं, और उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं, कोई ज्योग्राफी नहीं। तो ये मैंने बच्चों को सिखाया, सुनाया। अब उनको सुना रही हूँ जिनको एक्चुअली काम है उनको बताना। उनको तो मैंने बता दिया दूसरे एंगल से, जिसमें सारी जिम्मेवारी मैंने उन पर डाल दी, तुम पर नहीं डाली। तुम्हारा तो नाम भी नहीं लिया, टीचर्स पेरेंट्स का भी जिक्र नहीं किया कि तुमने, पेरेंट्स ने नहीं सिखाया आपको। हाँ, उनको मैं बहाना दे देती तो वो जाके अपने पेरेंट्स के पीछे पड़ जाते। आपने देखो आज मैम आई थी और आपने नहीं सिखाया, हमें 0 मिला। I didn't say that, but I know the real culprits. Real culprits are you and me, parents and teachers. So this is Dr. Abdul Kalam. Now let's look at the next one. ये कौन है? कौन इनको अपने बच्चों को, आपके सारे साइंस के बच्चे हैं, बोलो ये बनाओ, ये रोल मॉडल बनाओ इनको, इनकी लाइफ को समझो और समझे। देखो कैसे इतनी उम्र में साइंटिस्ट बन गए। Why should they not know his life? How did he become what he became? Unless you teach your children, how will they do? Not how. The how is very important. उनमें जागृति कैसी वो कह रहे हाँ करेंगे, फिर इंटरव्यू में जाएंगे, जॉब मिल जाएगा, बात खत्म। क्यों ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कूल में पढ़ के यहाँ का कोई बच्चा ऑर्डिनरी नहीं बनना चाहिए? यहाँ का बच्चा, हर बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहिए। अगर ये सब इसको, ये भी स्कूल एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे नहीं देगा तो कौन देगा? कौन देगा? This is the challenge before good schools like these is to produce extraordinary, brilliant children, ambitious children, collaborative children, innovative children, enterprising children, ethical children, creative business people children. This is the challenge before the school. Challenge before the school is not 10,000 people and this. No, how many scientists have you created? Social scientists, political leaders, administrators, entrepreneurs, corporate leaders, बाद में. That's your measurability. अगर स्कूल की जैसे IIT की मेजरेबिलिटी करनी, बताओ कितने पेटेंट लगाए? IIT की अगर मेजरेबिलिटी करनी तो पूछना चाहिए पेटेंट कितने तुम्हारे? इतने पेटेंट है ही नहीं। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती सरकार की तरफ से IITs में। 25 से ज्यादा IITs हैं हिंदुस्तान में, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट होते हैं। कितने पेटेंट लगाते हो? इसमें कितने इन्वेंटर बने, कितनों ने नई चीज खोज की, पता भी नहीं चलता। और यही IITian जब बाहर चले जाते हैं वहां से शुरू हो जाते हैं वहां बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने तन मन धन वहां लगा, उसके ऊपर उधर उनकी जवाबदेही है। हमने तुम्हें इतनी तनख्वाह दी, इतना करिए काम, उनको करना पड़ता है। अब आप कहें कि वहां इंस्पिरेशनल है, यहां नहीं है, ये बात नहीं। ये कोई अमेरिका में ऐसे कर रहे थे? नो, they had the spirit in them. See others. ये कौन है? ये जाके अमेरिका से MIT से पढ़ के करा था इन्होंने, कोलंबिया से पढ़ा था। इनके अंदर खुद अग्नि थी कि मेरे देश को मुझे ये करना है। And he read and he understood and he became an academic. And you see how much, and look at the courage he had. Men and women, brothers and sisters of America. किसी से घबराए नहीं। आप में से कोई शिकागो गया है खड़े होके? वहां जहां स्वामी जी खड़े थे उन्होंने स्पीच दी, किसी ने खड़े हो गए? शिकागो गए? कभी जाओ तो जरूर जाओ उस हॉल में और वहां पर खड़े हो जाओ जहां उन्होंने खड़े हुए थे, कहा थे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। सो दिस इज स्वामी जी। लाइफ लेसन्स क्या देने हैं? और तो बच्चे को ऐसे फोटो दिखाओ और लाइफ लेसन सिखाओ। ये आपका काम है, ये पेरेंट्स का काम है और ये आपका काम है। आप पेरेंट भी हैं और टीचर भी हैं, दोनों का रोल एक ही सिक्के का दो हिस्से हैं। प्लेसेस वेयर टीचर इज अ पेरेंट एंड द पेरेंट इज अ टीचर, बिकॉज पेरेंट टीचिंग करता है एंड टीचर पेरेंटिंग करता है। ये कौन है? ये भी गुरु जी। इनके बारे में बताओ। जब गुरुपूर्व होता है
इनका बर्थडे होता है, इनके बारे में बताओ। जिस दिन जिस महान व्यक्ति का बर्थडे होता है वो बर्थडे मनाओ उनके गुणों के लिए, उस दिन छुट्टी हो जाती है, छुट्टी हो जाती है उस दिन। छुट्टी क्यों? उनका दिन मनाओ, आओ उनके गुणों को याद करो, उनका इनैक्टिंग करो, उसके बारे में चर्चा करो। दैट्स द वे। उस दिन छुट्टी हो जाती है, जबकि उस दिन उनको समझना जरूरी है, क्योंकि रीजन भी है। छुट्टी किस बात की? रोने दो कि मैं पेरेंट्स को झगड़ने दो, ले जाओ स्कूल, दूसरा स्कूल ढूंढ लो, ये स्कूल नहीं मिलेगा। पर अगर ये नहीं करोगे तो फिर देखो कैसे भागे भागे आते हैं आपके पास। और पेरेंट्स को बोलो तुम भी आओ, सीखो कुछ। You are also invited to come. Maybe you have a half a day, but you're celebrating the life of this person. So these days are for celebration. So Guru Nanak जी की ये है, selflessly serve करो, सबको equal समझो, और life of honesty. ये कौन है? ये कौन है? हाँ, ये गांधी जी का। तो क्या गांधी जी बिफोर ही बिकेम द महात्मा उनकी लाइफ में पहले लेसन्स नहीं है? खूब सारे लेसन्स हैं। जब उनकी बायोग्राफी पढ़ो, ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, तो बहुत सारे लेसन्स हैं। कितने बच्चों ने उनकी ऑटोबायोग्राफी इतनी सिंपली लिखी हुई है, कितने बच्चों ने पढ़ी? कितने बच्चों ने पढ़ी? और महात्मा गांधी जी का बर्थडे आने वाला है अभी भी, तो उस दिन छुट्टी हो जाएगी। उस दिन इनको दिखाओ मेकिंग ऑफ महात्मा, तो बोलो टुडे इज फिल्म शो, come and see making of Mahatma. Call them. It's his birthday. We will listen to his life. That is how you as teachers and you also want a holiday. तुम्हारी छुट्टी भी जा रही है, so आपको भी छुट्टी चाहिए, इसीलिए उनकी लाइफ में छुट्टियां ही आ रही हैं। See, fault lies here. Parents want a छुट्टी, teachers want a छुट्टी, children want a छुट्टी। इस देश की भी इसीलिए छुट्टी है, छुट्टियां ही आई जा रही। ये देखते कौन है? इनका भी जन्मदिन 30 अक्टूबर को था मेरे ख्याल। किसने कितनों को याद किया इन्होंने? अगर ये नहीं होते तो हिंदुस्तान आज जुड़ा होता नहीं। और जहां मैंने देखा है छोड़ गए अधूरा काम, वो अभी भी हमारे लिए कांटा बन के जिंदा है। When he was stopped from totally occupying, taking over Kashmir, he was stopped. And that is where that problem remained as a ceasefire line. So friends, this is what he is. So we need to remember. अच्छा, ये सब जानते? कितनी अच्छी तरह जानते हैं आप? जानते ना? ये हम सबके हीरोज हैं, है ना? ये हीरोज हैं, मैं जीरोज नहीं बोल रही, हीरोज हैं। There are real heartthrobs, and we want to look like them, dress like them, follow them, copycat them, and get their autograph. And जहां ये जाते हैं लाइन लगी रहती है, किस लिए? But they're very good entertainers. They entertain us, but and they take away a lot of our time. They take a lot of our energy, and they take away a lot of our money because we spend to entertain ourselves. And they are our real influencers. Yeah, they are the darlings for the girls, also for the boys. So see, उस कैटेगरी में और इस कैटेगरी में, इसमें से 100% पास हो गए ना, सब पास हो गए ना? ताली बजाओ, आप सब पास हो गए। ताली बजाओ, आप पास हो गए। हाँ, माइनस लगाओ अपने ऊपर। तो ये देखो, now comes other area, that these are the movies which I showed to the children, but it is you who have to plan them. Plan these movies. And movies नई नई आती रहती हैं आजकल। वेरी गुड लाइव्स आ रही हैं। सहना नाहिवाल की फिल्म आई, सहना की आई बैडमिंटन की, किसी ने दिखाई स्कूल में? वो नेटफ्लिक्स में ही घूम रही है, क्यों नहीं दिखाते? धोनी की भी फिल्म आई है, दिखाओ। ऐसी फिल्म दिखाओ जहां बायोग्राफीज हैं। जनरल मानिक शॉ की आई, वो दिखाओ। उधम नहीं, दूसरी फिल्म मानिक शॉ का ना, बहादुर, सैम बहादुर। ऐसी फिल्में ऐसी थोड़ी है सिनेमा में जा, यहां दिखाओ। And how he led the whole army and how he won Bangladesh. So friends, these are the stories. These are the biographies you have to make children read.
गिफ्ट भी दो और पढ़ाने का भी मौका। ये नहीं दे दी जाओ जाओ पढ़ के आना, कोई नहीं पढ़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, क्लास में पीरियड लगाना पड़ेगा, किताब हाथ में लेनी पड़ेगी, खरीद के लाओ, लाइब्रेरी से लाओ, डाउन द लाइन लो, ऑनलाइन ले पढ़ो, पढ़ो। दे मस्ट रीड बायोग्राफीज। बायोग्राफी से बहुत कुछ सीखेंगे, आपको सुनेंगे नहीं लेकिन बायोग्राफी से सीखेंगे, सुनेंगे नहीं। They have to see and hear and feel the life in their hands. फिल्म से भी दिखाओ, बुक से भी दिखाओ। ये इंस्पायरिंग इंडियंस की लेटेस्ट है, दिखाओ इनको ये फिल्म्स। Why do we इनको फिल्म क्यों छोटा? These are all heroes of today. We should let the names be known to the children. They should know these are our heroes. वो थोड़े थोड़े अपने सर्कल तक ही लिमिटेड रह जाते हैं, जबकि all students community should know they should be the real heroes of the youth. Similarly inspiring biographies भी है। केसरी देखिए, जबरदस्त है, बच्चे मस्ट सी इट, नहीं तो जलियांवाला बाग का पता ही नहीं चलेगा किस तरीके से वो आदमी आर्ग्यू कर रहा है। उफ, इट्स वर्थ सीइंग। उसको देख के तो कई बच्चे लॉ करना चाहेंगे। सो केसरी फिल्म इज ग्रेट। सैना का मैंने जिक्र किया, वो विजुअली एम्पावर्ड का एक हैदराबाद का विजुअली एम्पावर्ड लड़का है, क्या नाम उसका? श्रीकांत। That's a film must be seen. Srikanth ko I met him a month ago in one function. He was there, he was one of the speakers. These are the films to be seen, to be inspired now. Don't delay it. You have live होंगे, इन बच्चों के पीछे लगेंगे हमारे, कहेंगे मेरा हीरो कौन है, तो ये नहीं दूसरे का नाम ले, इनका नाम लेंगे। अब वो लाइफ खत्म, वो आपका होल रोल ऑफ एजुकेशन। नाउ ये गाइडेंस आपने बच्चों को देनी है, टॉकिंग करते करते प्रैक्टिस भी करनी है। हाउ टू अवॉइड जंक फूड, गेट इनटू हेल्दी फूड, हाउ टू ईट हेल्दी रूल्स, हेल्दी ईटिंग रूल्स, नेगेटिव हैबिट से कैसे बचना है, ये आपने बताना है उनको, ये आपने बताना है, पढ़ाते पढ़ाते बचाना है। और ये आपके चैप्टर्स में ही आ जाना है, कई बुक की चैप्टर्स में ही आ जाएगा, उसको एग्जाम्पल दे के, यू हैव टू गिव इलस्ट्रेशन दे के आप ये दे सकते हैं। कोई बच्चा बीमार है, पूछो क्यों बीमार है, ये है, सो यूज दैट एज एन एग्जाम्पल and give these are all some of these habits which I shared with these children this morning. I thought you need to know and you can use them while talking as children, as parents. This is the time, this is the role of the parents and this is the role of the teachers. Success habits that can harm the future, ये भी सिखा सकते हो। कोई बच्चे से गलती हुई उसको बताना, so you're also counselors. You play the counseling role. Remember, ये कैसे बच्चों को पॉजिटिव हैबिट में डिफरेंट है, नेगेटिव हैबिट्स है, फोन एडिक्शन से कैसे दूर रखना है। बहुत अच्छी बात है कि आप फोन अलाउ नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बात है, ये नहीं अलाउ होना चाहिए। स्कूल में फोन नहीं लाना है, स्कूल के बाद समझाना है। फिर उसके बाद स्कूल के बाद क्या करना है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, जो इधर स्लाइड में नहीं है, जो मेरी लाइफ में बड़ा रोल प्ले किया है स्कूल के बाद के स्कूल। What did I do after school which made all the difference in my life? And the credit for that goes to my parents and the discipline I had. I'll explain that to you later. But you see, positive habits क्या है? Addictions, कौन सी addiction चाहिए? जो reading करनी, daily exercise, these are the things. Then phone से कैसे आपने समझाना है ताकि बच्चे समझ लें जो आपको कर रहे हैं, आप भी दूर रहें फोन के, पेरेंट्स भी दूर रहें। जब बच्चा बात कर रहा है, खाना खा रहा है, उस वक्त बच्चे को ही अटेंशन चाहिए, because parents are also doing their homework sometimes on the phone. They have compulsions, but make sure that the child is not getting influenced by that, because how will you otherwise guide him? Digital habits. Now spiritual books. So ये spiritual books हर एक बच्चे के पास देखी होनी चाहिए. They don't even know कि हिंदुइज्म का आधार क्या है, हमारे हिंदू का आधार क्या है, उपनिषद और वेदास, हमारे उपनिषद, ये हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, लेकिन इसको कोई नहीं देखता। हम सिर्फ भगवत गीता से ही रुक जाते हैं, लेकिन गीता भी तो उपनिषद का हिस्सा है। तो हम लोग कैसे गीता का श्लोक सुनाएं, कभी उपनिषद पढ़ के दिखाएं, उनको पता तो होना चाहिए उपनिषद और गीता और ये वेद क्या है। और सबसे पुराना लिटरेचर
ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे पुराना, हजारों साल पर, बिफोर एनीथिंग एल्स केम. वी आर नॉट प्राउड ऑफ इट. When we say I'm a Hindu, you Hindu what? Oh, मैं शिव मंदिर जाता हूँ, मैं हनुमान मंदिर जाता हूँ, मैं उस मंदिर जाता हूँ. अरे हिंदू का मतलब क्या? असली तो शुरुआत होता है आपके वेद और उपनिषद से. और उपनिषद क्या कहता है? उपनिषद कहता है कि भगवान तो तुम्हारे अंदर है. दैट इज व्हाट द उपनिषद इज सेइंग. तुम बाहर ढूंढ रहे हो, ईश्वर तो आपके अंदर है, उसको ढूंढो. और कैसे ढूंढो? दैट इज व्हाट यू कैन ट्रेन ईच अदर. Brings a person who will speak on Vedanta and give them Vedanta lectures. Let them learn what is Vedanta. Unless you do, who will do it? Not parents can do it, teachers can do it, school can do it. Not they. वो थोड़ी कहेंगे मैम उपनिषद लाइए, मैम वेदा लाइए. नहीं, आप तरीके से उनको सिखाइए. So ये मैं किताबें लाई थी और सभी धर्म की हैं. So it's respecting all, and all these books say the same thing. It's look within. How do you look within? I think there was a gentleman who met me to say we can work on Anapana. You did that? Who said it? Somebody was telling me. You did it. Yeah. I'll come to what we can do in this. Just remind me if I forget. We can do something like this in the beginning in a small way, which will benefit all of you also. I'll come to that. So here's the thank you. Now, question here is, parents का भी role है. What is the teacher role? What kind of things you do? अच्छा, मैंने ये भी लिखा हुआ है, मैं भूल गई थी. What kind of things you do? हाँ, ये भी बहुत important है. म्यूजिक कैसा सुनते हो, फ्रेंड सर्कल कैसा है, क्लोथिंग कैसे पहनते हो. ये देखो. IPS officer, thank you to all of you for being with me on this truly shocking day where three cases of minors, one as young as 6 years old. 6-year-old गाड़ी चला रही थी, पुलिस ऑफिसर की कोई बेटी थी और मार के चली गई. ये मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया है कि इसमें कौन चाबी देता है अपने बच्चे को गाड़ी की, और मार गई लड़की. दूसरा एक और भी, 3 एक्सीडेंट थे उस दिन जिस दिन उन्होंने मुझे बुलाया. तो ये छोटा सा क्लिपिंग था कि कोई, मोस्ट ऑफ इट वाज रैश ड्राइविंग. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, हु इज एट ब्लेम? लड़की को चाबी कौन देता है? वो चोरी करती है? नहीं, उसको देते हैं, ले जा. और नेग्लिजेंट भी होते हैं, बिना उसको दिए तो वो नहीं करेगी. सो दिस इज द टीचर्स रोल. Your role is not only to complete the course. Your role is to make them understand the contents of the course, the knowledge in the course, the larger interpretation of the chapter. For that, you have to read first, think first, and find the essence of the course. You have to find the gist of the course. एक तो ये बात थी. दूसरी ये बताना था कि आप मुझे बताओ कि आपसे ज्यादा तो गूगल भी जानता है, आपसे ज्यादा चैट जीपीटी भी जानती है. तो आपका रोल क्या है एज ए टीचर? आपका टीचर है रिवीजन का रोल. आप उनको बोले कल ये पढ़ेंगे, पढ़ के आना, पढ़ के आना, नया पॉइंट देखते हैं कौन बताता है आप में से. वाई आर यू टीचिंग? वाई डोंट यू इनकरेज लर्निंग? वाई नॉट? Why not do advanced learning? Why teach? Why not learn? And then ask that student जो पढ़ के आया, तैयार करके आया, तुम पढ़ाओ, मैं तुम्हारे से खड़ी हूं, तुम पढ़ाओ. That means the boy or the girl is becoming courageous. You're teaching them communication, teaching them expression, and giving them the recognition. कि देखो ये बच्चा एडवांस पढ़ के आया, आज ये पढ़ के आया, कल कोई और आएगा. You are here for 100% courage, not 10%. 10% की थोड़ा सोसाइटी है. It should be at least 90%. So why are you teaching? Why don't you make them learn? And then make them teach. Make them speak. Make them communicate. 12th standard की लड़की या लड़का बहुत अच्छी है साइंस में. Why can't that person take a class of the 4th standard? 3rd standard जाओ क्लास लो, उसकी ग्रेडिंग अलग.
आप उसको कम्युनिकेशन सिखाते हो, करेज सिखाते हो, कॉन्फिडेंस सिखाते हो, जब तक डू नहीं, यू लर्न बाय डूइंग, नॉट बाय नोइंग. यू थिंक आई कैन टेल हर, नोइंग से नहीं चलेगा, डूइंग से चलेगा. तो मेक देम डू. That's your role as a teacher. How many children do you make them do? So your role as teachers has evolved and grown completely now. एक मेरे पास एक जर्मन कॉन्सेंट्रेशन कैंप से एक आदमी निकल के आया. उसने कहा कि जर्मन कॉन्सेंट्रेशन कैंप की जबरदस्त कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स को किसने बनाया? इंजीनियर्स ने बनाया. ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया. उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जब लोग घुट घुट के मर गए, किन्होंने बनाया? इंजीनियर्स ने बनाया. उन इंजीनियर्स के भी टीचर्स थे. टीचर्स के इंजीनियर्स ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाया. सो ऐसे टीचर, हमारे जो पीडब्ल्यूडी के रोड्स हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स बनाया और गड्ढे छोड़ गए. कौन से टीचर्स ने, इंजीनियरिंग कॉलेज ने ऐसे पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स पैदा किए? सिखाया नहीं कि जो तुम कर रहे हो ये सरकारी, ये पब्लिक मनी है, सैंक्रोसैंक्ट है, खबरदार. अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर्स भी तो स्कूल में गए. कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया? दे आर ऑल आवर प्रोडक्ट्स. आज हम करप्शन की अगर गलती कर रहे हैं तो पढ़ाया किसने सबको? माँ बाप ने सिखाया, दिखाया, और हमने सिखाया और हमने पास कर दिया. वो पास हो गए, 90% मार्क्स और 90% करप्शन. सो साथियों, मैं यही कहना चाहती थी, अपना अपना रोल समझो. यू आर शेपिंग लाइव्स ऑफ द पीपल एंड थ्रू यू आर शेपिंग द लाइफ ऑफ द नेशन. आज बच्चों ने, यूथ ने पूछा क्वेश्चन कि व्हाट कैन द यूथ डू, and it is from this that this presentation was linked. This is what the youth can do and you can do for the youth if you want a better country. So it's all in your hands. As LG Pondicherry, मैं एक चीज़ बड़ी अच्छी करती थी जो आपके लिए आइडिया अच्छा होगा, और एक आइडिया मैंने आपको बताया, पूछ लिया, याद कराना. वो ये था कि मेरे पास बहुत सारे ऑफिसर्स थे, सीनियर ऑफिसर्स. आपको पता है कि सीनियर ऑफिसर होते हैं, सर्विसेज में होते हैं, खड़ूस हो जाते हैं, हमको कौन पूछने वाला है. मैं एक एक करके रोज 101 करती थी उनसे. 101 करना था. 101 करने के बदले 15 मिनट मैंने निकाल दी इस बच्चे के लिए या इस स्टूडेंट के लिए या इस ऑफिसर के लिए, और सिर्फ 1 to 1 बात करती थी कि तुम्हारा हालचाल क्या है, तुम कैसे हो, घर में कैसे हैं, तुम कैसे काम महसूस कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ तो नहीं आ रही, कोई आइडिया है, हम बेटर कर सकते हैं. और 1 to 1 फर्स्ट नेम से, उसका सर नेम से नहीं, फर्स्ट नेम से. आई यूज्ड टू मीट देम एंड वो मुझे बताते थे और फिर अपनी प्रॉब्लम भी बताते थे. किसी की घर की प्रॉब्लम, किसी की ये वाली प्रॉब्लम. एंड आई नाउ वाज नॉट एन एलजी सिटिंग देयर, आई वाज लाइक अ काउंसलर वेयर आई वाज ट्राइंग टू हेल्प द पर्सन. एक आया, मेरा हस्बैंड बड़ा अल्कोहलिक है. Ma'am, I'm unable to concentrate on my work because my husband is an alcoholic. Can you help me with some hospital where I can get him treated because he doesn't listen to me? That's good enough. तो क्या मेरा रोल नहीं है इसमें? तो कहेंगे मैम ये तो आपका रोल नहीं है, आपका काम तो उसको एसीआर दे देते, काम से मतलब नहीं. You have to go beyond. So when you go beyond, that means trying. If you want to really know कि जो आप पढ़ा रहे हो वो सिंक कर रहा है, क्या वो सिंक कर रहा है, क्या वो चेंज कर रहा है या रिफॉर्म कर रहा है, उसको स्ट्रेस तो नहीं है, डिप्रेशन तो नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है. लिसन टू योर चिल्ड्रन. लिसनिंग विल हेल्प यू बिकम बेटर टीचर्स. इट्स लाइक लिसनिंग टू एज अ पेरेंट विल बिकम बेटर पेरेंट. फॉर दैट यू हैव टू फाइंड द टाइम. नाउ विच 15 minutes you pick up any child. और हो सकता है घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो, उसकी घर की प्रॉब्लम हो, तो क्या स्कूल का उससे लिंक नहीं है? There is a counselor in the school. How do you deal with that? You have to fight. That means that problem should come to the student teachers council or somewhere, maintaining the privacy, maintaining the confidentiality. Find out, go visit. उस बच्चे के बर्थडे पे चले जाओ घर. बच्चे का बर्थडे है, प्रेजेंट लेके चले जाओ. उसका मान बढ़ाने के लिए, oh my
स्कूल टीचर केम टू विश मी ऑन माई हैप्पी बर्थडे। आपका बच्चा बड़ा लायक है, ये बच्चा बड़ा लायक, उसको प्रेस्टीज दे दो, उसको स्कूल पहुंच जाओ, उसके घर पहुंच जाओ। बर्थडे वाले दिन, हर बच्चे के बर्थडे वाले दिन टीचर जाता है कोई? बच्चे का बर्थडे पता है टीचर्स को, और उस दिन उसकी गिफ्ट जाती है उसके स्कूल में। स्कूल शुड गिफ्ट हिम अ प्रेजेंट, दैट मीन्स स्कूल इज सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे। और देख लेंगे हालत क्या है, माँ बाप का हालत कैसे, घर का हालत कैसे, सब कुछ पता चल जाएगा। It's to link yourself with the life of the child, because you're shaping the child. Your duty does not stop and begin with doing the course. No, it's the understanding of education and being truly educated. And true education is life skill. Knowledge, life skill. Knowledge की कोई कमी नहीं है. You and I are dispensable today with artificial intelligence. Artificial intelligence will answer all your questions even better than some of the teachers, because सारी research दे देता है. तो फिर you and I are dispensable. तो फिर actually अब हमारा रोल क्या है? जो artificial intelligence नहीं कर सकती, वो है इंसान बनाना, नेक इंसान बनाना. उसमें दया, गिविंग, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन, करेज, फियरलेसनेस. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक कॉन्शियस नहीं आई, कॉन्शियसनेस नहीं आई. और अगर हम ये नहीं सिखाएंगे, वो सिखाएंगे जो एआई सिखा सकती है, तो फिर आपका रोल क्या है? यू आर डिस्पेंसिबल. दैट्स व्हाई इन 5-6 years you will not be needed. Teachers will be laid off, saying artificial intelligence पढ़ के आओ, we will answer your questions. And then online. Then where is the teacher's job? 5-10 years this may happen. What will you do then? You have to make yourself indispensable by creating better human beings. Who will create better artificial intelligence? Because artificial intelligence is nothing but you fed into it. You fed into it and it has extracted the knowledge and it is combining all the knowledge and giving you what you have fed. Just as the student is now producing the language, what teachers have fed, parents have fed. हाँ, मैं एक बात याद आ रही थी, मैं आपको बता रही थी कि स्कूल के बाद की बात, यू नीड टू नो हर बच्चा स्कूल के बाद क्या कर रहा है. पहली बात तो ये मुझे बताओ, आपको पता है कि कितने बच्चे ट्यूशन करते हैं? आपको तो क्यों कर रहे हैं? किस सब्जेक्ट पर ट्यूशन कर? इसका मतलब आपकी ट्यूशन की उस सब्जेक्ट की कमी है. क्यों नहीं आपकी पढ़ाई उसकी ठीक, उसको बोल यू स्टे बैक, आई टीच यू, स्टे बैक. यू आर वीक, स्टे बैक. नंबर 1, यू पीपल नीड टू नो, क्योंकि वो स्कूल के बाद होमवर्क भी करना, फिर ट्यूशन भी करनी, वो तो पिस जाएगा बच्चा, वो तो स्ट्रेस्ड आउट हो जाएगा. वेयर इज इट हिम टू टाइम टू रिलैक्स एंड प्ले एंड बी क्रिएटिव? तो पहली बात तो ये है कि आई वुड सजेस्ट मेघना फॉर इज, can we have a provision? Can we have a provision where teachers will have to play a very major role? You may be the first school in this country who may be doing this, and the idea is make them finish their homework here. Make them finish their homework here. Why should they take the homework back? Because homework is, these are now those subjects where parents can play very little role, because this was not a part of our schooling. So therefore the parents try and get the बाहर की help. So why? जब बच्चा होमवर्क यही करेगा, उसी वक्त ही पता चल जाएगा मुझे समझ नहीं आई थी, and he or she will ask for the teacher. Why not finish? Give them 1 hour of homework. Finish your school and then go. Play and go. Finish your homework and then go. Why can't we do this? Look at this as an idea, which means teachers spend an hour and a half extra. Well, parents can financially compensate for that extra hour. अगर बच्चे को ट्यूशन दे सकते हैं तो they can compensate financially, saying this is plus homework hour. We want the teachers' children, ताकि कोई कमजोर बच्चा हो ही ना. हम क्यों कमजोर बच्चे छोड़ दें? क्योंकि वो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सका. Why can't we try this as an experiment? But teachers may not like it because but don't you understand that your children, if something in the same school, are also finishing their homework here? Why I'm saying is, first of all is a homework, because I've seen homework is a very big responsibility now. Secondly is,
अगर मान लीजिए होमवर्क भी बच्चा जाके करता है, दी स्ट्रेस्ड आउट, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड, ही वांट्स टू डू समथिंग एल्स, पेरेंट्स से होमवर्क कर, तो झगड़ा होता है, बहुत झगड़ा होता है आपस में। होमवर्क नहीं करता, ये कुछ और करता है, ये दोस्तों के साथ चला जाता है, या ये करता है, या टीवी देखता है, या एआई पर करता है, या रील्स पढ़ता है, ये डाइवर्ट करता है। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली दिस स्कूल, आई एम टॉकिंग जनरली एट द मोमेंट। इज इट टाइम? क्योंकि ये स्कूल टाइम जो हुआ है अंग्रेजों के टाइम का है, जब विमेन वर नॉट एट वर्क। नाउ विमेन आर ऑल्सो एट वर्क एंड दे डोंट रिटर्न बिफोर 6 o'clock or so. So what do the children do? And we also have sometimes single families, we don't have parents to oversee, there's no care provider, there's no caregiver, the child is left on their own. मेरी लाइफ में ये हुआ था कि मैं स्कूल से टेनिस कोर्ट पे सीधा जाती थी, मेरे पास दूसरा टाइम था ही नहीं। मेरा स्कूल was halfway, then was a tennis club where my family was there playing tennis. I would drop halfway, go to the tennis court, play tennis, and while playing tennis, when I had time in between कि कोर्ट नहीं मिला, I should do my homework. क्योंकि मैं जाकर कैसे करती, तो जब मुझे टर्न नहीं मिली, मैं होमवर्क फिनिश करती थी, मैं वेट नहीं करती थी बातें करो इधर उधर, कॉर्नर में बैठ के होमवर्क करती थी। जितना हो गया, जितना नहीं हो गया बाकी जाके करूंगी। और उसके बाद जाकर खेल के, और होमवर्क भी हो गया, खेल भी लिया, थकावट से माँ बाप से अर्ली डिनर लेके सो गए, कोई और टाइम नहीं बचा, क्योंकि यू आर एग्जॉस्टेड। व्हाई डोंट वी डू दिस? फिनिश द होमवर्क, प्ले अ गेम बिफोर यू गो इफ यू कैन, प्लेइंग एवरी डे, ट्राई डिफरेंट गेम्स। उसमें बच्चा का पता चल जाएगा रुचि किधर है, कौन सी गेम या क्रिएटिविटी म्यूजिक में है, आर्ट में है, उसको मिक्स कर दो। आज तेरी आर्ट क्लास, आज तेरी ये, एंड देन द चाइल्ड यू नो 101 से इस चाइल्ड की ओरिएंटेशन इधर है, दैट यू कैन स्टार्ट फोकसिंग देयर, व्हिच मींस यू गिविंग डायरेक्शन टू क्रिएटिविटी ऑफ योर चाइल्ड, व्हिच इज नॉट द केस। मेरी लाइफ में ये बनाने वाली चीज यही थी कि मेरी स्कूल के बाद नो गैलिवेंटिंग, नो टाइम वेस्टेज, टेनिस, बुक्स, home and sleep, no time wastage. With the result, I was ahead of my entire batch of my tennis friends. At the age of 21, 22, I was in the Indian Police Service because I had now finished my masters and started to work, and while working I sat for the exam because वो पढ़ाई की continuity रही। और 22 years में I had a house of my own, a transport of my own, a salary of my own, and a government job of my own. Because I was ahead of time. इसका क्रेडिट जाता है मेरे पेरेंट्स को, जिन्होंने मेरी लाइफ को ऑर्गेनाइज ऐसे कराया कि मेरी टाइम मैनेजमेंट बड़ी जबरदस्त बन गई। मुझे टाइम वेस्ट करना आता ही नहीं था, एक दिन मेरा ऐसे ही चल गया, ऐसा कोई नहीं जाता था। हर चीज में, खेलने में, पढ़ने में, दोस्ती में, और फ्रेंड्स भी थी, टेनिस की फ्रेंड्स भी थी, स्कूल की फ्रेंड्स भी थी, और फ्रेंड्स क्या चाहिए, स्कूल में भी फ्रेंड्स, टेनिस पे भी फ्रेंड्स, और कौन से फ्रेंड्स, और गली के फ्रेंड्स। देयर इज नो टाइम फॉर गली फ्रेंड्स, सो देयर वाज मैटर ओवर। व्हाई कांट वी डू दिस विद आवर यूथ? फिनिश द होमवर्क, प्ले अ गेम, और उस गेम में जब आप जाओ, आप भी ट्रैक सूट पहनो, सब टीचर्स ट्रैक सूट पहनो, शाम को आप ट्रैक सूट पहन के बच्चों के साथ खेलो, और खेलते खेलते घर चले जाओ। आप भी खेलो, आप भी फिट रहोगे, और बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। हमारी टीचर हमारे साथ खेलती, आज वो गिर गई बड़ा मजा आया, आज हमारी टीचर गिर गई, पता है वो गिर गई, लेकिन फिर हमने उठाया। दैट इज ह्यूमन रिलेशनशिप्स। तो आप भी खेलो, खेलते खेलते आप भी चले जाओ ट्रैक सूट में। तो अपना अपना ट्रैक सूट बैग लेकर आओ, और ट्रैक सूट टाइम, प्ले टाइम, एवरीबडी प्ले टाइम। कोई गेम ट्रैक सूट में है, इसमें है, कोई इस गेम में खेलेगा, सब जने खेलेंगे। गेम खेलो, मैराथन करो, रौनक लगाओ, म्यूजिक भी लगाओ, म्यूजिक भी चलाओ, म्यूजिक भी चल रहा है, गेम्स भी हो रही हैं, बहुत मजा आ रहा है। यू आर एंजॉयिंग द स्कूल, एंड यू टीचर्स कैन ऑल्सो बिकम स्टूडेंट एट दैट टाइम। You will become youthful, you will remain youthful. और अगर आफ्टरनून नैप चाहिए, पावर नैप चाहिए, तो चाइनीज की डेस्क अगर आपने देखा होगा, देयर आर
classes in Chinese, they slip in. It's like a business class of an airplane where you press button and you sleep. So you have a half sleep. So you sleep half an hour, power nap ले लो. ऐसी चीजें पॉसिबल है. मैं ये सोचती हूँ ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है. ऐसी बात क्यों नहीं करते हम? ये कोई इसके लिए हार्वर्ड नहीं जाने की जरूरत, अपनी जरूरत को मीट करने की जरूरत है. So should we do it because now it's a Harvard research? MIT research कहती है कि if the children finish their homework before they go to school and also add games after school and the teachers also play, they make better citizens. Supposing research says that, then you will follow that research. You'll be influenced by that research. But common sense is saying conflict का reason homework, lack of sports का reason है infrastructure बच्चों के पास आसपास नहीं है खेलने के लिए, स्कूल के पास तो है, तो स्कूल क्यों नहीं यूटिलाइज करे 5 बजे तक? मैम फिर 6 बजे तक घर जाएंगे. हाँ तो क्या हो गया, जाए 6 बजे, क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने जाके रोटियां पकानी वहां. उन्होंने तो तुम खाना खाने, हाँ सुबह फिर जाके मिलके खाना बनाओ. उनको बुलाओ, बच्चों आ जाओ मिलके खाना खाएंगे, आओ मिलके बनाए, वो भी सीख लेंगे, आपके लिए भी हो. तो सब जने मिलके अर्ली डिनर ले लेंगे. तो माँ बाप ने जाना है तो बच्चे बेड में जाएं, आप जाओ. You are finished by 8 o'clock. You have the whole evening to you. Leave the children to their bed. 8 o'clock, you sleep. 8:30 sleep, 9 o'clock sleep. Why can't we choose this day? We can. Every life and home is different. But what I'm saying is, isn't this the need to reduce the conflict? And research is proving, I have read a paper, now see this, I am giving you what common sense is, but I read it somewhere in one of these journals, that children who get involved into helping parents in cooking and cleaning make better adaptability. That is the research. They are more adaptable. And they make better leaders. It also said they make better leaders. और मुझे नहीं याद था, मुझे याद है कि हम भी जब टेनिस खेलने के बाद जाते थे, मेरी मम्मी तब टेनिस कोर्ट में होती थी, पापा भी टेनिस कोर्ट पे होते थे, मैं और मेरी छोटी बहन दोनों जने घर जाके अंगीठी लगाते थे, 4 कोल की अंगीठी. तब कोई गैस गुस थोड़ी होती थी, हम चूल्हा चलाते थे कोयले का. मामा कहते थे अंगीठी पकाना, मैं आंधियां, अंगीठी को जला के रखना, मैं आके आपको गर्म करके खाना दूंगी. हम दोनों बहनें दोनों जने अंगीठी लगाते थे कोयले की. एंड बाय द टाइम माय मदर केम, हम घर का काम भी हेल्प करते थे. और कई बारी मैं और मेरी सिस्टर अपने कमरे का सफाई करके जाते थे. अपने कमरे की सफाई वो अलग बात है कि जब मैं झाड़ू लगाती थी कूड़े को कॉर्नर में छोड़ जाती थी, इकट्ठा करके कॉर्नर में, पर टाइम नहीं था उठाऊं उसको. सो आई यूज्ड टू क्लीन इट अप. ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स मदर क्लीन्ड इट अप अगेन, बट इट वाज अ हैबिट टू सर्व, अपनी जिम्मेवारी लेनी. फिर वीकेंड में अपने होमवर्क करना, अपने आप को तैयार करना अगले वीक में. तो क्या हुआ, वही आदतें अपने काम में आ गई. अगर मैंने ये नहीं किया होता तो ये सॉफ्ट स्किल्स मुझे मेरी लीडरशिप में नहीं आती. अकोमोडेट करने के लिए, हेल्पफुल होने के लिए, बेसिक काम करने के लिए, पैसा बचाने के लिए, वेस्टेज कोई नहीं, पॉकेट मनी देनी वापस दे देनी, पैसे की जरूरत नहीं पड़ी ले लो वापस. ये सारी आदतें कैसे आएंगी जब तक हमें जिएंगे नहीं. और ये टीचर्स का रोल है, पेरेंट्स का रोल है, और आप पेरेंट भी हो और आप टीचर भी हो. और ये छोटी सी मॉडिफिकेशन अगर आप स्कूल में एक्सपेरिमेंट करके देखो आप, तो फिर देखोगे यू मे बी द ट्रेंड सेटर इन द कंट्री. एंड यू हैव टीचर्स ऑन योर साइड. पेरेंट्स को तो बता दो कि ये करना है, बिकॉज वी डोंट वांट कॉन्फ्लिक्ट एट होम एंड वी वांट चिल्ड्रन टू टीच, go and work at home and help you and cook together.
कोई काटे, कोई क्लीनिंग करे, कोई टेबल लगाए और मिलके खाए, और जो कर मिलने का खाए पेरेंट्स एक दूसरे की बात सुने। उस वक्त कोई फोन शोन नहीं, और उस वक्त एक दूसरे का आज क्या किया स्कूल में, आज क्या हुआ, आज हमने क्या अचीव किया, आज ये हुआ, बात करो। चलो खाना खत्म, टेबल क्लियर्ड, क्लीनिंग डन, whoever is to suppose everybody cleans together, तो ये टुगेदरनेस फैमिली बॉन्ड बनाएगा। सो ये है टीचिंग, टीचर्स का ये रोल है। ये बातें मैंने बच्चों को नहीं बताई, बताऊं उनको, बताती तो प्रॉब्लम आती है आपको। पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम आती, तो वो कहते हैं मैडम आई थी, वो कह गई है, अब हमने यही करना है। कहेंगे किसने बुलाया था उसको? मैं कहूंगी हलवासिया ने। तो साथियों ये है, सोच लो, कोई मैंने ग्रीक एंड लैटिन तो बोली नहीं, मैंने वही बोली है जो हकीकत है। सोल्यूशन ढूंढने हैं तो ये बच्चे ने यूथ पूछा कि यूथ कैसे इंडिया की बनेगी। मैं समझती हूँ यूथ को, आपको समय की कदर, मूल्यवान और इन लाइफों को जोड़ना, फिल्म दिखाना, फिल्म शो ऑफ द डे टाइम टेबल में होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने बोला था बच्चों के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन में ये है कि उनको ये समझाना कि तुम्हारे सब के अंदर एक कॉन्शियस है, आत्मा है। उसको आत्मा बोलो, सोल बोलो, भगवान बोलो, आपकी मर्जी, लेकिन एक आवाज है अंदर। देयर इज अ वॉइस इनसाइड, देयर इज एन इनर वॉइस एवरी वन ऑफ अस हैज, व्हिच इज कॉमन फॉर ऑल ऑफ अस, एंड दैट इनर वॉइस इज व्हेन यू स्टार्ट ट्रेनिंग टू लिसन टू इट। सो वी हैव टू ट्रेन टू लिसन टू इट एंड नॉट सप्रेस इट। जब हम गलत काम करना चाहते हैं, आवाज उठती है, हम दबा देते हैं, नहीं मेरा तो मन कर रहा है ये करने को, ये जरूरी है, तो फिर लेकिन फिर से आत्मा जागती है कि तू जो वो कल किया था वो गलत था। आवाज फिर से आती है, फिर भी आप बोल जाते हो। तो धीरे धीरे थोड़े सालों के बाद कहती हो, मेरी उस वक्त आत्मा बोलती थी कि जो मैंने कहा वो ठीक नहीं था। आई विश आई हैड हर्ड माई वॉइस। व्हाट इज दैट वॉइस? You can give it any name. I don't know how to name it. I can only say inner voice. And inner voice has no color. It has no religion. It's a human inner voice, the divine human voice. It's come from Prakriti. It's coming from nature. Listen to it. और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे इसको सुनना, उतने अच्छे इंसान। सो हमने बच्चों को इनर वॉइस को सुनना की ट्रेनिंग देनी है। उसके लिए एक तरीका है जो मैंने आपको बताया था, उसके लिए है आना पाना। आना मीन्स ब्रेथ वॉच। आप सांस ले रहे हो, सांस जा रहा है, सांस ले रहे, यू विल जस्ट वॉच योर ब्रीदिंग। लेकिन आपका दिमाग टिकेगा नहीं, मेरा भी नहीं टिकता, धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद टिकता है। तो व्हाट वी टीच चिल्ड्रन आना पाना। यू कैन स्टार्ट द क्लास विद आना पाना। बच्चों हम मिल गए, settle down, happy, good. Now let's reflect, and so that we pray for good concentration and good health. Now just shut your eyes and just pray and concentrate. Now shut your eyes and just watch your breath come and go, come and go. Breath, oh उड़ गया, मैं तो इधर सोच रहा था, ब्रीदिंग से सोचना, मेरा दिमाग तो कहीं उड़ गया। कोई बात नहीं, यही तो है इशू, तो bring it back. Bring it back. महीने के बाद वो कहेंगे my now breath watch time has increased because your concentration is increasing. What we need to make help our youth is increase concentration. और पढ़ाने से नहीं concentration बढ़ने वाली, chapter पढ़ने से नहीं, this is how you go, by practicing, by doing, do. And teacher also shuts the eyes, she also practices, breath come, breath go, breath come, breath go. इसमें आपने मंत्र जाप करना है, ये करने की, just watch your breath, don't link with anything, just watch your breath, come and go, come and go. इसको कहते आना पाना। आना पाना विपश्यना के कोर्स में अगर जब करो तो ऐसा आना पाना बोलते हैं, लेकिन अंग्रेज या वेस्टर्न वर्ल्ड उसको माइंडफुलनेस कहते हैं। सी उन्होंने अपना नाम लगा दिया, पेटेंट हमारा था, ले गए वो, जैसे योगा के बड़े बना दिए उन्होंने अपने अपने नाम। प्रॉब्लम क्योंकि हम लोगों ने उसको नहीं हाईलाइट किया, बट डजंट मैटर, आई एम फाइन।
सो लेट्स गो बाय आना. तो बच्चों को जब आप क्लास शुरू करो बैठाओ, ओके बेटे, first 5 minutes we'll just bring our concentration into the class and with gratitude. We deep breathe, come and go, and we'll also say thank you, God, for this health, this opportunity, this teacher, this school, and my parents. Thank you, God, for everything. But you will then do anapana, and then everybody will have a smile. कोई दुखी भी आया बच्चा, वो भी स्माइल करेगा. उसके बाद कोई नहीं दुखी रहता, सब खुश हो जाएंगे. And then after that, you are saying grateful and clap for yourself that you're in. Say, the first 10 minutes is done. Now you start your teaching or learning, up to you. तो ये मैं सोच रही थी कि ये रिफ्लेक्शन वाला भी चीज आप स्कूल में ऐड कर सकते हैं. सो आप फिल्म्स ऐड कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऐड कर सकते हैं, स्कूल का होमवर्क की सिस्टम ऐड कर सकते हैं, शाम को जाने से पहले खेलना ऐड कर सकते हैं, आफ्टरनून का मील में थोड़ा इनको पावर नैप के लिए सिस्टम बना सकते हो, वो भी कर सकते हो, बायोग्राफीज दे सकते हो पढ़ने के लिए. See, all these things you can add to your curriculum, and that is what will make your group Fravashya, Fravashi. So you will create Fravashians. You'll create a whole community of Fravashians, right? You can. और जब कोई बहुत नेक निकालेगा इंसान, बड़ा बड़ा होके बोलेगा, तू कहाँ से पढ़ा था? अरे फ्रवशी से. अब मैं समझ गया, वहीं से. That will bring the brand name to the city. And that is where you will have played a role. You will have played a role. और जब यही बच्चे माँ बाप को सिखाएंगे, जो आप सिखाओगे वो कहेंगे मेरी टीचर ने तो ये कहा, मैं यही करूं. The more he loves you, the more he can. And you know where love will come? When you fall playing with him. जब आप गिरोगे, हंसोगे, उतना तेज नहीं भाग पाओगे, हंसोगे, जोक करोगे. चैंपियन थोड़ी बनाने के लिए खिला रहे हैं हम. स्पोर्ट्स को लव कराने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसमें से चैंपियन निकलेंगे. पता चल जाएगा इसमें कौन सी क्वालिटी है, तो हम उनको और आगे ले जाएंगे. अगर ये चाहते हो स्कूल में, तो है तो आपके हाथ में. और जब नहीं कर रहे हैं तो आप अपना रोल नहीं पूरा निभा रहे. आप पास करा रहे हो, डिग्री दे रहे हो, सर्टिफिकेट दिखा रहे हो, जॉब प्लेसमेंट करा रहे हो, इंटरव्यू के लिए तैयार करो, लेकिन देश बदलने के लिए नहीं कर रहे. विवेकानंद पैदा नहीं कर रहे, डॉक्टर कलाम जैसे नहीं बना रहे, गांधी जैसे इंसान नहीं बना रहे. जबकि बना सकते हो. उनमें अनोखा क्या था? कुछ भी नहीं. उनके अंदरूनी जागृति थी. आप अंदरूनी जागृति कराने के लिए spark, you're the matchbox. You have to light that spark every day light that lamp within them. Light the lamp. तो जब वो बच्चे कहें आज की लैंप, ओके लैंप ऑफ टुडे, तो बच्चे को ऐसे भी पूछ सकते हो, अच्छा विचार तू बता. सो यू आर द लाइटर ऑफ द लैंप एवरी डे. आप अटेंडेंस से शुरू करते हो, मैं लाइटिंग ऑफ द लैंप से शुरू करूं. You could. That's what it is, your attendance. Try that. These are, and you can have think more. मैं तो सिर्फ simple thinking कर रही हूँ. I'm only on common sense thinking. But do you know, I'm not saying this for the first time. Every time I have been invited to attend to a school or a college, I ask them कि ये क्यों नहीं करते आप? कौन सा vested interest है जो रोक रहा है आपको? टीचर नहीं मानेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानेगी, ये नहीं मानेंगे. अरे यू आर लुकिंग एट व्हाट इज नॉट पॉसिबल. हाउ कैन यू, व्हाट इज नॉट पॉसिबल नहीं, व्हाट कैन बी पॉसिबल. स्टार्ट स्मॉल. Oh, we may have financial compensation. Okay, ask for a financial compensation. Otherwise, begin with that. Just try. Let's see what we can do. Okay, thank you. अच्छा खड़े रहो, मैंने फोटो लेनी है. और ताली भी बजाएंगे. So wish you all very well.
May you be happy forever. May you create students who give credit back to you. मेरी टीचर ये, इसने बनाया मुझे, इस स्कूल ने बनाया और मुझे इस टीचर ने बनाया. May you be making great human Indians जिसको फिर दिखाया जाए शक्लों में. ये पहचानते हो? हाँ, वो हमारे स्कूल का, ये मेरे स्कूल का, ये मेरे स्कूल का, वही तो स्कूल था. You can do this. Thank you. Thank you so much. Respected Dr. Kiran Bedi Madam, honored members of the management, respected academic leaders, dear colleagues, and distinguished guests. As we conclude this enriching interaction, it is my privilege to express our sincere gratitude. Dr. Kiran Bedi Madam, thank you for sharing your invaluable experiences, inspiring perspectives, and profound insights with us. Your words have reminded us that education is not merely about imparting knowledge, it is about nurturing character, building resilience, leading with integrity, and inspiring every learner to become a responsible citizen. We are grateful to our respected Ratan Sir, Sharvari Ma'am, and Meghna Ma'am for providing us with this exceptional opportunity to learn from one of India's most respected leaders. To everyone present here, thank you so much and have a wonderful evening.